So hello students, today we are going to complete the part 3 of this video. Earlier we have completed part 2 and part 1 of the video. Today we will start from the colonization of Asian countries. What is colonization? As I have told you earlier, colonization is the encroachment, means a big country, when big country rule over a small country, we call it colonization. Like a British possession in Asia, like they did in India after the discovery of a sea route to India by Vasco da Gama in 1498. The Portuguese had established their base in Goa. By the early 17th century, the Dutch replaced the Portuguese as the dominant force in Asia. In 16th century, the merchant and a trader of London established the East India Company. At first, it set up its factory in Surat. Gradually, the British increased their political power in India. So, who was the first to come in India and discover the route to India? It was Vasco da Gama. Who? Vasco da Gama. And when did he find the route to India? It was 1498. So the Portuguese had established their base in Goa. So when did Portuguese came to India? In 1498. And where did they came to India? They came to India in Calicut. So at that time, Calicut was part of the area, today's Kerala area, and they established their base in Goa. So their base was established at Goa. So by the 17th century, so after Vasco da Gama, who was Portuguese, then came the Dutch. The Dutch people came and replaced the Portuguese as a dominant power in Asia. Dominant means the one who has more power is called the dominant power. So the Dutch, when Dutch came, they overthrew Portuguese in the power comparison. And then later on in 16th century, the merchant and trader of London established East India Company. So जो वहाँ पे इंग्लैंड में जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, और जो बहुत सारे ट्रेडर थे, इन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाया. उसका नाम क्या रखा उनने? ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया आया एंड established their factory, first factory at Surat, and gradually British established, increased their political power in India. So इसी के साथ ब्रिटिश ने क्या किया? धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाता गया. बाय 1765 they had become a political power in Bengal, Bihar and Odisha. This was the beginning of British imperialism in India. Taking advantage of the dissension among the Indian ruler, they conquered one territory after another. With the conquest in Punjab in 1949, the whole of India has become the part of the British Empire. So 1765, so they became full powerful throughout the country, and they become political power in Bengal, Bihar and Odisha. So this was the beginning of the British imperialism in India. Taking advantage of dissension among the Indian ruler, they conquered one territory after other. So after all, at last in 1849, when they captured Punjab, the whole of India became the part of British Empire. Means after before 1849, they conquered one after another. Like once they conquered Mysore, later on they conquered the Maratha area, and after all, at last they conquered the area from the Punjab, and the whole of India now came under the part of British Empire. So here we have also a list of possession of Britishers outside Asia. मतलब इंडिया के अलावा और कौन से एरिया थे जहाँ पे ब्रिटिशर ने राज किया था? बर्मा इज टुडेज म्यांमार, ठीक है. फिर श्रीलंका एंड मलाया, हांगकांग, कौलून, तिब्बत, पैलेस्तीन, मेसोपोटामिया. So these are the different areas and years when British occupied these countries. Okay, so later on, what is further we have to read is China and the Opium War. So there is a conflict between Britain and China arose in 1839. So at this time, the Chinese port officially prevented the British from distributing opium to Chinese port worker. British was upset by the refusal of the Chinese emperor to grant them the right to free trade.
The emperor was not in favor of opium being smuggled into China. Thus, a huge consignment of opium in the British warehouse in Canton was destroyed in 1839. This provided the provocation of British needed to declare war against China. This came to be known as a First Opium War. So, what happened here is, what is opium? Opium एक नशीली चीज़ होती है. So, ये जो ओपियम है, इसको क्या हुआ कि ओपियम वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ओपियम इनटू चाइना, जिससे एक नशा करवा के लोगों से ज़्यादा काम करा सकें. इसलिए ब्रिटिश इस चीज़ को लेके आया चाइना. बट चाइना पोर्ट में जो ऑफिशियल्स थे, जो पोर्ट में काम करते थे, उनने इसको यूज़ करने से मना कर दिया. तो ब्रिटिश अपसेट हो गया. और चाइनीज़ एम्परर था, जो चाइनीज़ एम्परर मतलब जो चाइना का राजा था, उसने भी बोला कि हमारे देश में ये सब नहीं आएगा, ओपियम जैसी चीज़ें हमारे देश में नहीं आएगी. जिससे ब्रिटिश नाराज़ हो गया और उसको बोला कि आप हमको फ्री ट्रेड करने नहीं दे रहे और ओपियम नहीं फैलाने दे रहे, तो वो नाराज़ हो गया. दस अ ह्यूज कंसाइनमेंट ऑफ ओपियम. उसके बाद क्या हुआ? कंसाइनमेंट मतलब एक बहुत बड़ा खेप, मतलब जो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो इकट्ठे रखा होगा बहुत सारा सामान. जो ब्रिटिश का ओपियम बहुत सारा एक फैक्ट्री में रखा हुआ था पास में चाइना में. कहाँ पे? कैंटन में. उसमें क्या किया चाइनीज़ लोगों ने 1839 में आग लगा दी. और इससे क्या हुआ? ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आया और उन लोगों ने एक वॉर को डिक्लेयर कर दिया चाइना के ख़िलाफ़, और उसको अपन कहते हैं फर्स्ट ओपियम वॉर. ठीक है. आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री, a treaty known as a Treaty of Nanking was signed in 1842. So ब्रिटिश क्या करता था? पहले आपको वॉर में लड़ाता था. वॉर लड़ने के बाद जब जीत जाता था या तो फिर कोई भी जीतता था तो एक ट्रीटी साइन होती थी. ट्रीटी मतलब संधि साइन होती थी. सो देयर वाज अ ट्रीटी आफ्टर द फर्स्ट ओपियम वॉर एंड इट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ नानकिंग was signed in 1842. Under this treaty, British got possession of Hong Kong on the lease of 99 years. They were also allowed to open 5 ports, including Canton, to trade with China. In 1997, Hong Kong finally reverted to China. So, जब ब्रिटिश ने उसको चाइना को इस वॉर में हरा दिया, उनने एक ट्रीटी साइन करवाई, ट्रीटी ऑफ नानकिंग. कब? 1942 में. एंड इस ट्रीटी में लिखा क्या था? जो चाइना का एक हिस्सा था हांगकांग, आज आप देखोगे अपने मैप में एक हांगकांग ढूंढोगे आप लोग का होमवर्क है कि हांगकांग को देखोगे मैप में कहाँ है. ठीक है. सो उस हांगकांग को चाइना ने 99 साल के लिए अपने को लीज़ पे ले लिया. चाइना से बोला कि अब वो आपके कब्ज़े में नहीं है, अब वो ब्रिटिश के कब्ज़े में 99 साल के लिए. एंड और 5 और अलग पोर्ट्स को खोला. उसमें से एक था कैंटन. कैंटन वही जगह है जहाँ पे चाइनीज़ लोगों ने ओपियम पे आग लगा दी थी. ठीक है. फिर अभी जब लास्ट में 1997 में, तब जाके ब्रिटिश ने हांगकांग को चाइना को वापस किया. कब वापस किया? वो 99 साल का जो लीज था वो सब भूल गए थे. तो चाइना ने उसको जब बोला कि भाई हमारा हांगकांग वापस करो, तो 1997 में, क्योंकि लीज कब ख़त्म हो गई थी? 1841 में लीज ख़त्म हो गई थी. 1941 में, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 1842, इसमें 99 ईयर को ऐड करोगे तो क्या होता है? 1941 में चाइना को लौटा देना चाहिए था. बट ब्रिटिश ने कब लौटाया? 1997 में हांगकांग को वापस किया. अ ईयर लेटर द ब्रिटिश गॉट द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस अंडर द ट्रीटी ऑफ द बोक. It was also granted the right of extraterritorial, which meant exempted from arrest and prosecution or any kind of search or seizure of British nationals. Soon, other colonies power like the US, Belgium, France, Norway, Sweden, Portugal sought similar concession from the Chinese and signed their own treaty. In the unrest that followed, that there were violent anti-foreigner disturbance. So, British got which title? चाइना ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें उसने बोला कि हम ब्रिटिश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का नाम देंगे. ठीक है. किस ट्रीटी के बाद? कौन सी ट्रीटी के बाद? ट्रीटी ऑफ बोक के बाद. सो इसमें क्या होगा कि उन्होंने बोला कि हम आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आपको कोई अरेस्ट नहीं होगा. कोई भी ब्रिटिशर्स हमारी धरती पे चाइना में अरेस्ट नहीं होगा और उस पर कोई केस नहीं होगा, और उसके कोई भी ज़मीन जायदाद को हम कब्ज़ा नहीं करेंगे.
सो यही देखते हुए यूएस, बेल्जियम, फ्रांस और ये सारी कंट्री चाइना पहुंच गई, कहने लगे हमको भी ऐसा एक एग्रीमेंट आपके साथ साइन करना है जिसमें आप हमको ऐसे ऐसे ट्रीटीज हमको भी ऐसे ऐसे कंसेशन दोगे, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, बहुत सारा एंटी फॉरेनर, अब जब चाइना में ऐसे ऐसे चीज़ होने लगा तो वहाँ के लोग कहने लगे सब कुछ फॉरेनर को मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो ये सोचते हुए वहाँ के लोगों ने एक बहुत सारे डिस्टर्बेंस अंदर, फॉरेनर लोगों को बाहर भगाओ ये बोलते हुए बहुत सारा वायलेंट प्रोटेस्ट किया। इन वन सच इंसिडेंट अ मेजर इंसल्ट टू द ब्रिटिश फ्लैग and also the more serious incident of the murder of French missionary led both Britain and France to declare war। ऐसे एक इंसिडेंट के बाद फ्रेंच और वहाँ पे ऐसे एक इंसिडेंट के बाद वहाँ पे ब्रिटिश के झंडे पे एक बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी गई, उसको जला दिया गया। एंड ऑल्सो द मोर सीरियस इंसिडेंट ऑफ अ मर्डर ऑफ फ्रेंच मिशनरी, फ्रेंच की एक मिशनरी थी वहाँ पे, उसके भी एक आदमी को वहाँ पे मर्डर कर दिया था चाइना में। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश एंड फ्रांस ने मिलकर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। दिस वाज कॉल्ड सेकेंड ओपियम वॉर। कब, 1856 से लेके 60 तक। लेड टू द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ टेंसिन। अब सेकेंड, आपको मैंने बताया जैसे एक वॉर होती है तो फिर क्या होता है, एक ट्रीटी आती है। तो ट्रीटी आई, ट्रीटी का नाम क्या था, टेंसिन, 1858 में। द चाइना लेटर रिफ्यूज टू रेक्टिफाई दिस ट्रीटी। दिस लेड टू द एंग्लो फ्रेंच वॉर अगेंस्ट चाइना। इसमें क्या हुआ, अब लेटर ऑन उसके कुछ जब ट्रीटी साइन हो गई थी उसके बाद चाइना ने उस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया। उसके बाद फिर एक वॉर हुआ जिसका नाम था एंग्लो फ्रेंच वॉर अगेंस्ट चाइना। सो एंग्लो फ्रेंच वॉर मतलब, जिसमें एंग्लो का मतलब होता था अंग्रेज, सो एंग्लो मीन्स इंग्लिश, फ्रेंच मतलब फ्रांस, ये सब मिलके किसके साथ वॉर हुआ, चाइना के साथ। सो बीजिंग, उस टाइम पे उसका नाम था पेकिंग, वाज ऑक्यूपाइड एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर। इस वॉर के बाद जब चाइना हार गया तो बीजिंग जो आज वहाँ का कैपिटल है तो उसका नाम था पेकिंग, उसको क्या हुआ, वहाँ पे कब्जा कर लिया ब्रिटिश ने। बाय द एंड ऑफ द 19th century द ब्रिटिश वेयर इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ लार्ज चंक ऑफ चाइनीज टेरिटरी इंक्लूडिंग हांगकॉन्ग एंड अ पार्ट ऑफ कुलोंग। तो उस वॉर के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश के पास चाइना की बहुत सारी ज़मीन हो गई और उस पर उसने कब्जा कर लिया। ड्यूरिंग दैट टाइम, साइड में जैसे लिखा है, ड्यूरिंग दैट पीरियड द ओनली कंट्री लेफ्ट अलोन वॉज थाईलैंड अंडर किंग रामा वन and his successor. It had begun to accept Western culture. It was therefore useful as a buffer zone because the British had their eye on India. They had already seized Burma and made it a part of their Indian possession. So ओनली कंट्री, मतलब अपनी इंडिया, आप मैप में देखोगे इंडिया और उसके आसपास की कंट्री सब पे ब्रिटिश ने राज किया, सिर्फ थाईलैंड पे नहीं करा। क्यों, थाईलैंड उस टाइम किंग रामा फर्स्ट के अंडर था और वो उस एरिया को छोड़ना चाहता था कि कल को कोई एनिमी आए तो थाईलैंड तक पहुंचेगा तो उसके बाद हम उस पर अटैक कर देंगे, मगर थाईलैंड जाएगा तो कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि वो अपनी कंट्री है ही नहीं। सो थाईलैंड पे, सिर्फ थाईलैंड एक कंट्री थी जिसको चाइना ब्रिटिश ने कैप्चर नहीं करा, कॉन्कर नहीं करा। ओके, सो अनदर थिंग इज़, सो कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन कंट्री के बाद आता है, उसी में आता है पोर्तुगीज पोजीशन इन एशिया। सो अभी ब्रिटिश का देखा, अब अपन देखेंगे पोर्तुगीज ने क्या क्या पोजीशन था। तो पोर्तुगीज एडवेंचरर नेम वास्को डी गामा सेल्ड अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड रीच द इंडियन पोर्ट ऑफ कैलिकट इन 1498, thus opening the sea route between Europe and India. The Portuguese started trading with India and the Spices Island in Far East Asia. They established in India at Daman and Diu, Goa, and the Timor and Macau Island of the Far East. They also attempted to occupy Sri Lanka but were driven out by the Dutch who were already well entrenched there. So, जो पोर्तुगीज़ जब आए इंडिया तो आपको पता है 1498 में कौन आया, वास्को डी गामा आया। कहाँ पे आया, कैलिकट में आया। कैलिकट कहाँ है, केरला में आज के टाइम पे। कहाँ से आया, केप ऑफ गुड होप से आया। ये कहाँ पे, अफ्रीका में। अफ्रीका में एक रास्ता है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। सो इस केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए इंडिया आया। दस ओपनिंग अ सी रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। इससे क्या हुआ, एक सी रूट खुल गया यूरोप और इंडिया के बीच में। इसके बाद इन पोर्तुगीज दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विथ इंडिया विद द स्पाइसेस आइलैंड ऑफ फार ईस्ट एशिया। सो स्पाइसेस के लिए इंडिया आए थे वो लोग, स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए, और दे एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी। इसके बाद उन्होंने अपनी एस्टैब्लिश करी कॉलोनी कहाँ पे, गोवा, दमन एंड दीव
एंड ताइमूर मकाऊ आइलैंड इन फार ईस्ट। ये दोनों आइलैंड इंडिया से और आगे फार ईस्ट की तरफ है, ठीक है। दे ऑल्सो अटेम्प्टेड टू ऑक्यूपाई श्रीलंका बट दे वर ड्रिवन आउट बाय द डच। सो डच भी एक कॉलोनी थी वहाँ पे और श्रीलंका के पास। जैसे ही श्रीलंका वो लोग अटैक करने गए और कब्जा करने गए, वहाँ पे उनको डच ने वहाँ से भगा दिया। सो नेक्स्ट कौन है? तो आपने देखा पहले ब्रिटिश आए, मतलब पहले ब्रिटिशों को अपन ने पढ़ा क्योंकि सबसे पहले तो आए पोर्तुगीज़ थे, ओके। मगर जब अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? अपन ने ब्रिटिश के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा पोर्तुगीज़ के बारे में, अपन पढ़ेंगे डच के बारे में, डच। The Dutch also established a trading company to trade with India and the Spices Island in the Far East. They occupied Bantam from the Portuguese and established a trade center there. Next, the Dutch occupied Ambonia and Jakarta. In this way, they became the master of Java, Sumatra, and Borneo. In 1641 CE, they occupied Malacca and 1658 captured Sri Lanka from the Portuguese. But after the defeat of Dutch in a Napoleon war in Europe, Sri Lanka passed into the hand of British. So what happened here is Dutch also came into India to trade with India in spices, in मसालों के लिए ट्रेड करने के लिए आया था. So they occupied what? Bantam from the Portuguese and established a trade center there. And after that they occupied Ambonia and Jakarta. Jakarta is Indonesia. अम्बोनिया और जकार्ता ये सब इंडोनेशिया में आज. इन दिस वे दे बिकेम द मास्टर ऑफ जावा, सुमात्रा एंड बोर्नियो. सो जावा, सुमात्रा एंड बोर्नियो ये सब कहाँ पे है? ये सब आप देखोगे इंडोनेशिया में है, ठीक है. ये लोग का जो भी राज था ये इंडिया में नहीं था. इंडिया में बहुत कम राज था डच का. उनका मेजर कहाँ पे था? इंडोनेशिया के पास. सो इन 1641 दे ऑक्यूपाइड मलक्का एंड इन 1658 दे कैप्चर्ड श्रीलंका फ्रॉम द पोर्तुगीज. सो उन लोगों ने 1641 में मलक्का लिया. मलक्का कहाँ है? सिंगापुर के पास. और 1658 में श्रीलंका पे कब्जा किया. उसके बाद क्या हुआ? डच लोगों का क्या हुआ? नेपोलियन वॉर. एक नेपोलियन वॉर हुआ यूरोप में, जहाँ पे अंग्रेज़ों के बीच में और डच के बीच में एक वॉर हुआ जिसमें अंग्रेज़ जीत गए. और उसके बाद उनने श्रीलंका को ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दिया. इसके बाद अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेंच कॉलोनीज इन एशिया. सो फ्रेंच in 1664 the French East India Company was established in India. The French established colonies in Pondicherry and Chandranagar. In 1721 they occupied the island of Mauritius in the Indian Ocean. Similarly they also established the colony of Mahe. Under Napoleon III the French followed an aggressive policy. In 1860 they landed troops in Vietnam under the pretext of protecting Christian of Indochina and occupied it. By 1885 the whole of Vietnam had came under the French control. So French also established a company in 1664. And what was the name of the company? It was French East India Company. So they established their colonies in where? They established their colonies in Pondicherry and Chandranagar. In 1721 they occupied the island of Mauritius. Mauritius कहाँ पे? इंडिया के इंडिया के वेस्टर्न तरफ, नीचे की तरफ है, सदर्न वेस्ट तरफ है एक आइलैंड है, उसका नाम है मॉरिशियस. मॉरिशियस पे भी उनने कब्जा किया. सिमिलरली उनने कुछ कॉलोनी माहे क्या है? पौंडीचेरी के पास एक जगह है जिसका नाम है माहे. सो अंडर नेपोलियन द फ्रेंच फॉलोड अग्रेसिव पॉलिसी. नेपोलियन वहाँ का कौन था? वहाँ पे रूलर था. तो नेपोलियन के अंडर में उन लोगों ने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी करी. उसके बाद उन लोगों ने वियतनाम पे कब्जा किया. सो प्रोटेक्ट क्यों करा? इन द प्रिटेक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रिश्चियंस. उन्होंने इसलिए कब्जा किया, वहाँ पे क्रिश्चियनों पे अत्याचार होते थे, उनको बचाने के लिए उन्होंने वियतनाम पे अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया. After 1885 the whole of Vietnam had came under the French control. 1885 के बाद पूरा फ्रेंच के कंट्रोल में आ गया वियतनाम. वियतनाम कहाँ है? आप लोग मैप पे देख लेना. The French also established trading center in Cambodia and Cochin China in the Far East. Besides, French also got Guangzhou province from China on the lease of 99 years. French had also established their own East India Company. They came into conflict with the British and fought many wars. Ultimately, they were defeated by the British and remained confined to Pondicherry.
So French also established their trading centers at where? Cambodia. Cambodia भी एक कंट्री का नाम है, कंबोडिया. एंड कोची चाइना इन फार ईस्ट जगह पे भी उनने बहुत राज किया. एक कोवांग चोंग करके भी एक चाइना की एक प्रोविंस थी, उसको भी 99 साल के लिए लीज पे लिया. जैसे कि हांगकांग को ब्रिटिश ने लिया था, वैसे ही क्वांग चोंग नाम की जो जगह थी उसको फ्रेंच ने लीज पे लिया. एंड उनने वहाँ पे अपना खुद का ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया और वहाँ पे उस पर राज किया. अल्टीमेटली क्या हुआ? दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड रिमेन कन्फाइंड टू पोंडिचेरी. आखिरी में क्या हुआ? ब्रिटिश ने उनको एंग्लो फ्रेंच वॉर में हराया और ऐसे 3 वॉर हुए, जिसके बाद आखिरी में इनको दबा के रखा और ब्रिटिश ने इनको कभी पोंडिचेरी से आगे नहीं जाने दिया. उसके बाद कौन आया और किसका राज चला एशिया पे? जर्मन का. एशिया जब मैं बोल रहा हूँ तो आपने कल परसों देखा था जब मैंने आपको क्लास में दिखाया था कि एक कॉन्टिनेंट है एशिया. कॉन्टिनेंट की जब बात हो रही है तो पूरे एशिया की बात हो रही है, इंडिया के लिए बात नहीं हो रही. यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट की बात हो रही है. सो जर्मनी ऑल्सो एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन एशिया. इट ऑक्यूपाइड द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ न्यू गियाना. It also got Kwachao province from China on lease and trading concession in Shantung in the Pacific. The German occupied Caroline and Marshall Island. अब इसके बाद क्या हुआ? जर्मन आए. जर्मनों ने क्या किया? न्यू गियाना आइलैंड है कहाँ पे? इंडोनेशिया के पास में. इस पे कब्जा किया और काओचाओ जो एरिया था चाइना का उसको भी उन्होंने लीज पे ले लिया और ट्रेडिंग कंसेशन ले लिए. कहाँ पे? शांतुंग में. कंसेशन मतलब जो डिस्काउंट वगैरह ले लेते हैं कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और वहाँ पे एग्रीमेंट करके उनने वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर खोल लिया. उसके बाद उन्होंने कैरोलाइन एंड मार्शल आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड के पास है, और इन सब आइलैंड पे भी उन्होंने कब्जा किया. उसके बाद कौन आया? रशिया भी आया एशिया पे. आफ्टर द डिफीट ऑफ द क्रीमिया वॉर द रशियन रूलर स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग सेंट्रल एशियन कंट्री बिटवीन 1864 and 1868. दे ऑक्यूपाइड खोदंग, बोखारा, शिवा, तानशिंद, Turkestan, Samarkand, etc. So these are the country which is very in a very close contact of the Russia. Means when you see the map of the Russia, you will find Tashkent, which is now Uzbekistan, Turkestan, which is now Turkmenistan, and Samarkand, and these are the area which is very much at the boundary of the Russia. So what they did, they occupied this region. Who occupied? There were the king in the Russian at that time, and they occupied this region. Russia also received from China the island of Liuting on the lease of 25 years. So रशिया ने भी चाइना से एक एरिया को लीज पे लिया, और कितने साल के लिए? 25 साल के लिए. कौन सी जगह का नाम था वो? लियोटंग. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्सेज. जब अपन बोलेंगे सोर्सेज, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी हैव लर्न द हिस्ट्री. अब आप बोलोगे कि हिस्ट्री अपन को पता कहाँ से चली? अपन अब देखते हैं कि अपन को हिस्ट्री कहाँ से पता लगी. द टर्म सोर्स, दैट इज सोर्स मटेरियल, रिफर्स टू द मैन्युस्क्रिप्ट, डायरीज, जर्नल, ट्रेवल लॉग्स, बुक, इंस्क्रिप्शन, carvings and cultural remain of the period under study, from which historian attempt to reconstruct an account of a particular era. Source can be of 2 type. अब क्या हुआ? अपन ने मैन्युस्क्रिप्ट लिया. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जब कोई आदमी अपने बारे में लिखता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट. ठीक है. और डायरीज, जब वो कोई आदमी अपनी डायरी लिखा, किसी ने अपने ट्रैवल लॉग्स लिखे. ट्रैवल लॉग्स मीन्स अब वो यात्रा कर रहा था तो उसने अपनी यात्रा के बारे में कोई किताब में लिखा. कोई बुक लिखी. इंस्क्रिप्शन लिखा. जो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जगह जगह पे अपन लिख के रख देते थे उस टाइम, जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में आप पढ़ोगे आगे जाके. उसके बाद क्या था? कार्विंग पड़ा. कार्विंग मतलब दीवारों पे उकेर देते हैं, उसको अपन कहते हैं कार्विंग. और कल्चरल रिमेन जो उस ज़माने के थे, उन सब की मदद से आज अपन ने हिस्ट्री को ऐसे क्रिएट किया है. सो ऐसे सोर्सेज को अपन हाउ वी कैन डिफाइन इन हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स. इट्स वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ secondary. So primary refers to all original document and other forms of itinerary evidence. In this category, an obvious application to the modern era, we include film, videotape of incident, photograph, painting, and interview of eminent personalities published in newspaper and magazines of the time. These sources are usually found preserved in local and state archive. So primary sources are, these are the original documents of that time and the literary evidence. ठीक है. सो व्हाट वी कैन इंक्लूड इन दिस थिंग? वी कैन इंक्लूड फिल्म्स, वीडियो टेप ऑफ द इंसिडेंट, एंड फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स. ओके. एंड द इंटरव्यू ऑफ द एमिनेंट पर्सन्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफ द टाइम. सो सेकेंडरी सोर्स क्या होंगे?
सो सेकेंडरी सोर्स होंगे वर्क एंड द बुक ऑफ हिस्टोरियन विच आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स की मदद से कोई लोग अपनी किताब लिखते हैं और उसकी मदद से अपन ने यदि कुछ भी लिया है सोर्स तो उसको अपन कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। फिर अपन ने कहाँ से लिया, राइटिंग से। एंड सर्टनली प्रिंटिंग वेयर ईदर इन देयर अर्ली स्टेज और हैड नॉट डेवलप्ड एट ऑल इन द एंशियंट पीरियड, सो सच रिकॉर्ड आर स्कैंटी। This is why only a fraction of those early period have been documented. But after the invention of writing, human history got a powerful form of expression. The earliest system of writing were pictorial script, from which descended the cuneiform script used by the Sumerians 300 before Christ era, comprising wedge-shaped mark on clay tablet. Some of this pictorial script are still undeciphered. So अपन ने इसके बाद कैसे फाइंड किया, राइटिंग से। सो राइटिंग जो थी, आज अपन इंसान कभी लिखना नहीं सीखा था, इसकी मदद से क्या हुआ, बहुत टाइम तक इंसान लिखना नहीं सीखा, इसकी मदद से अपन को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ अपन को पता नहीं है। इसलिए नहीं पता क्योंकि इंसान लिखना नहीं सीखा था, और जैसे ही इंसान ने लिखना सीखा अपन ने बहुत तेज़ी से हिस्ट्री को जानना शुरू करा। उसके बाद अपन का दूसरा काम क्या था कि भाई उनने जो लिखा है उसको आज अपन को समझना पड़ेगा। तो उसका मतलब होता है डिसाइफर्ड। अपन को यदि कोई वर्ड लिखा है अपन को उसको समझना पड़ता है, यदि वो कोडेड लैंग्वेज में है, अपन ने आज तक नहीं देखा और अपन उसको एक रिलेशन निकाल के समझने की कोशिश करते हैं, उसको अपन कहते हैं डिसाइफरिंग। क्या कहते हैं, डिसाइफरिंग। सो अनडिसाइफर्ड लिखा है मतलब उसको अपन पता नहीं कर पाए, डिसाइफर्ड लिखा होता तो अपन पता कर पाए। सो फर्स्ट टाइप अपन ने आज तक कोई स्क्रिप्ट, जैसे आपने सामने लिखा है ये इंग्लिश स्क्रिप्ट है, अपन ऐसे ही जो वर्ल्ड में सबसे पहली जो स्क्रिप्ट मिली उनमें से एक कौन सी है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ठीक है, ये कौन यूज़ करे थे, इनने सुमेरियन ने यूज़ करा था 300 बिफोर क्राइस्ट एरा में। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर दे डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम मैन बिगेन टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन ऑन द वेराइटी ऑफ राइटिंग सरफेस सच एस बार्क ऑफ ट्री, लीव्स एंड एनिमल स्किन। एंशिएंट इंस्क्रिप्शन फाउंड एनग्रेव्ड ऑन पिलर एंड स्टोन known as epigraphic evidence span different period in time. Good example of this are Ashokan rock edict and a pillar inscription of Samudragupta which provide a major account of information on a religious and administration tone of that period. So जैसे ही इंसान ने लिखना चालू करा तो उसने कहाँ कहाँ लिखना चालू करा, हर जगह लिखना चालू करा, जैसे कि पेड़ों पे लिखना, पत्तियों पे लिखना, एनिमल की स्किन पे लिखना। इसी के तरह अपन ने पत्थरों पे भी लिखना देखा, पिलरों पे भी लिखा हुआ देखा, जैसे कि इसका एक एग्जांपल क्या है, अशोका रॉक एडिक्ट है, और समुद्रगुप्ता जो गुप्ता डायनेस्टी से थे, वो एक राजा था, बहुत फेमस राजा था जिसने अपन को हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मदद करी। किसका नाम ले सकते हैं अपन, अशोका एंड समुद्रगुप्ता का। इन दोनों ने अपने जो भी इंस्क्रिप्शन थे, इंस्क्रिप्शन मतलब ये लोग दीवारों पे और पत्थरों पे एक इंस्क्रिप्शन लिखते थे, तो उसमें अपन उसको समझ के आज अपन ने जो भी हिस्ट्री लिया है इन दोनों की मदद से सबसे ज़्यादा मदद मिली है। द एरा ऑफ लिटरेचर एज वी नो इट बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ पेपर इन 104 सेंचुरी in the Christ era, but many centuries passed before it became available in a subcontinent. Contemporary writer therefore had to manage with traditional materials such as bark, leaf, etc. Portion of such old manuscript from the past have been managed to survive into modern time, can be divided into two parts. So क्या हुआ कि जब पेपर तो बन गया था 104 क्राइस्ट एरा में, मतलब आज 2021 चल रहा है, जब 104 साल चल रहे थे तब पेपर बन चुका था, बट चाइना में पेपर बना था और चाइना ने इसको बहुत साल तक रहस्य रखा और किसी को नहीं बताया कि पेपर असली में बनता कैसे है। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत साल लगे पेपर को इन्वेंट होने के लिए, तब तक लोगों ने पेड़ों पे, बार्क पे, लीव्स पे लिखना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्चर थे उसको अपन ने दो टाइप से अपन ने डिफाइन किया है। फर्स्ट है इंडिजीनियस लिटरेचर। इंडिजीनियस मतलब यहीं खुद का बना हुआ होता है, उसको अपन कहते हैं इंडिजीनियस। सो उसमें क्या आएंगे, वेदास आएंगे, उपनिषद आएंगे, रामायण, महाभारत, पुराण आएंगे, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर आएंगे, जो कि बहुत अच्छे सोर्स है अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। उसके अलावा क्या है, ट्रैवल अकाउंट है। सो ट्रैवल अकाउंट जो होते हैं, जो बहुत सारे लोग थे जो घूमने आते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आते थे, वो लोग अपना एक पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड बनाते थे कि हमने रास्ते में क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, उन सब के बेसिस में भी अपन ने हिस्ट्री को लिखा है। सो इनमें से एक सबसे फेमस एक राजा था, एक जन था, उसका नाम था मैग्नेतीस। सो ये ग्रीस एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। इसने भी सबसे ज़्यादा अपन को, इसकी बुक थी इंडिका, इसने लिखा था एक बुक, उसका नाम था इंडिका, और उसने सबसे ज़्यादा मदद करी अपन को हिस्ट्री जानने के लिए। फॉर द अर्ली एंड एंशिएंट एज वी रेयरली हैव एनी मच सोर्स
material, we found like we have to make do with whatever information we have gathered, mainly from the ruins of ancient cities and archaeological remains. These remain include monument, burial site, and other material relics with the people of that period left behind. For example, the excavation site of Mohenjo-daro and Lothal give us fairly good idea about the civilization of once flourished there. So इसके पहले जो बहुत सारा टाइम था जिसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन कम है, क्यों कम है? क्योंकि उस ज़माने में कोई राइटिंग नहीं थी और उस ज़माने की कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आज बाकी नहीं है. जो भी बाकी थे, जैसे कि कुछ कुछ जगह जैसे कि मोहनजोदारो और लोथल, जो मोहनजोदारो आज पाकिस्तान में है, लोथल अभी गुजरात में है. सो ये जगह में कुछ कुछ जगह थी जहाँ पे अपन को देखने को मिला कि उस ज़माने में घर कैसे होते थे. उसके बेसिस में अपन ने बहुत सारे हिस्ट्री को जाना. अनदर सोर्स क्या था? कॉइन्स. कॉइन्स क्या होते थे? राजा महाराजा मीन्स द टाइम एट दैट टाइम द मोस्ट प्रेफर्ड वे राजा और द महाराजा विल and pass their knowledge was to make coin in different shapes and to engrave different message in the coins. What they do, they mint coin with the message on it. So coins helped us in many of the way to understand the history. So what are the forms of coin we got? They were gold, silver and copper, and the condition on it and the design they have engraved on it. जैसे कि आज आप 2 रुपये का सिक्का देखोगे उसमें कुछ डिज़ाइन बना रहेगा, वैसे ही उस ज़माने में भी कुछ कुछ डिज़ाइन वो लोग बनाते थे, जिसकी मदद से आज अपन ये देखते हैं कि अपना उस ज़माने में से क्या मैसेज देना चाहता था वो राजा अपन को. ठीक है. उसके बाद अपने बहुत सारे सिक्के अलग अलग कंट्रीज़ में पाए गए, जैसे कि रोमन कॉइन्स इंडिया में मिले. रोमन मतलब इटली के आसपास की जो जगह है वहाँ के कुछ कॉइन इंडिया में मिले और अपने कॉइन वहाँ पे मिले. इससे अपन को ये पता लगता है कि अपना ट्रेड वहाँ तक चलता था, इटली तक और रोमन कंट्री तक चलता था. ओके. फिर द जनरल ऑफ फ़हीन. फ़हीन एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम था. पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री. सो पिलग्रिम था, चाइनीज़ पिलग्रिम यात्री था. वो इंडिया और श्रीलंका आया और उसने, और उसी के जैसे एक और जन था, उसका नाम था ह्यूसांग और कौन? फ़हीन. इन दोनों की जो अपन की यात्रा थी. सो दिन को जो ट्रैवल लॉग्स थे, ट्रैवल लॉग्स मतलब इनके जो यात्रा करते टाइम इनने जो पूरी यात्रा में जो जो इनके साथ हुआ उसकी किताब लिखी और उसके बारे में अपन को उनने उस समय के बारे में अपन को सबसे ज़्यादा बताया. तो उनने कौन से समय के बारे में बहुत अच्छे से बताया. हर्षवर्धन नाम का राजा था उस समय में, फ़हीन और ह्यूसांग आए थे और गुप्ता टाइम के आए थे. तो इनने उस टाइम के बारे में अपन को बहुत सारी डिटेल दी. ठीक है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द 2 पीरियड इज़ दैट फॉर द एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अ सेकेंडरी सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द पीरियड. For the late medieval and modern period, however, we have an abundance of primary source such as literature, biography, painting, court record, royal farman. Sources such as literature, biography, painting, court record, royal farman, monument evidence and not to mention modern photographic evidence. So अपन को एंशियंट और मेडाइवल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि उस ज़माने के बारे में अपन को सिर्फ सेकेंडरी सोर्स ऑफ अपन को पास नॉलेज था. प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पढ़ा, वैसे ही सेकेंडरी था, सिर्फ प्राइमरी नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में किसी को लिखना नहीं आता था और अपन को उसके बारे में कुछ नहीं पता. सिर्फ सेकेंडरी अपन ने बस किसी की बातें सुन के, किसी की कोई किताब थी उसको देख के अपन ने पूरी हिस्ट्री को फिगर आउट किया. सो द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उससे भी अपन को बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में पता लगा. जैसे कि आपने देखा होगा ताजमहल, और जैसे कि आपने ये देखा कुतुब मीनार, और ऐसे ऐसे डिफरेंट जो भी मोनूमेंट्स है, इनने भी अपन को बहुत हेल्प करी. फॉरेन सोर्सेज लाइक द अकाउंट लेफ्ट बाय द यूरोपियन ट्रैवलर्स, स्पेशली फ्रांकियोस बर्नियर, travel in a Mughal empire and Jean Baptiste Traveller, 6 voyage and the 2 volumes of travel in India provide a variety of information. फिर क्या हुआ, कुछ फॉरेनर्स थे जो इंडिया आए थे घूमने के लिए. उनमें से एक था फ्रांसिस बर्नियर और दूसरा था जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनीज. सो फ्रांसिस बर्नियर ने मुग़ल एम्पायर के बारे में अपन को बहुत कुछ बताया, और जो जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्स था उसकी जो 6 वोयाज उसने बुक्स लिखा था, द 6 वोयाज एंड द 2 वॉल्यूम ट्रैवल इन इंडिया, इसने अपन को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया. फिर था एक अबू फज़ल कौन था? अकबर का नवरत्न में से एक था, जो अकबर का फेवरेट में से एक था. उसने एक किताब लिखी थी ऐन-ए-अकबरी. इसने अपन को पूरे मुग़ल राज के बारे में बहुत सारे अपन को इन्फॉर्मेशन दिया. फिर क्या था?
मुग़ल एम्पायर हुमायूं की बहन, मतलब हुमायूं अकबर के पापा थे हुमायूं, तो हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बेगम। इसने अपन को एक किताब लिख के दी जिसका नाम था हुमायूं नामा। उसने अपन को हुमायूं रोड के रूल के टाइम, मतलब जब अकबर के फादर जब रूल करते थे हुमायूं, उसने उस टाइम के बारे में अपन को सब कुछ नॉलेज दिया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप लोग इस सब को रीड करें, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिससे आपको सब कुछ एक बार फिर से याद आ जाए। अपन इसकी एक्सरसाइज आगे जाके अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को फिर से रीड करें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस ऑन आवर ग्रुप। टिल देन, थैंक यू।